के ऊपर सीख रहे हैं. And it's once again a privilege to hear from God. और फिर एक बार ये सौभाग्य है कि हम प्रभु से सुने. You know, Genesis chapter 12 verse 2 to 3. और उत्पत्ति का किताब जो है 12 अध्याय 2 से 3. You know, God promised Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा You किया. know, he said, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Verse 3 it says, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all the people on the earth will be blessed through you. और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. Hallelujah. When God promised Abraham, और देखिए जब अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, you know, he had a redemption plan in his mind. और परमेश्वर के हृदय में जो है एक छुटकारा का योजना था. And he chose the lineage of Abraham, और ये दिखाई पड़ता है इस अब्राहम के वंशावली में, from where the blessings came. और जहां से उस वंशावली से आशीष का The स्रोत word of आया. God says that all people on the earth would be blessed through you. और देखिए वचन कहता है सारे कुल जो है भूमंडल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे. Hallelujah. Who is that blessing? और कौन है वो आशीष? You know, that blessing is a wonderful counselor. और वो आशीष जो है हमारा अच्छा सलाहकार That है. blessing is a peacemaker. और वो अद्भुत सलाहकार वो जो शांति करता That है blessing वो है. is the one who is the healer of this world. और वो आशीष हमारा जो है वो चंगाई देने वाला. The blessing is the one on whom we hope for. और वो आशीष वो है जिस पर हमारी आशा टिकी है. You know, the blessing is the one the only hope that the world can be saved. और ये आशा की एक ही आशा है जिसके द्वारा जो है दुनिया या पृथ्वी जो है बचा ली जा सकती Hallelujah. है. That blessing is none other than Jesus Christ. और ये आशीष और कोई नहीं लेकिन हमारे यीशु You मसीह know, है. God promised Abraham और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया. way before Jesus was born और बहुत साल पहले यीशु के जन्मने से that through him a blessing would come and all the people would be blessed through him. और उनके द्वारा जो है आशीष जो है आएगी और उस आशीष के द्वारा जो है सारे भूमंडल के लोग आशीषित होंगे. Hallelujah. This morning we see. और इस सवेरे के वक्त हम देखने This वाले morning हैं. every one of us experience it. और जैसे हम सभी लोग अनुभव करते You हैं know, when we hope in Jesus Christ, जब हम यीशु में अपनी आशा को लगाते when we हैं, keep our faith in Jesus जब Christ, हम जो है यीशु में अपने विश्वास को लगाते हैं, you know, unlimited blessings is our portion in the name of Jesus. और जो बिना जो है बिना सीमित के जो है आशीषों का बौछार हम पर होता The है. blessing of Abraham is our portion. और अब्राहम के आशीषें जो है हमारे भाग है. Hallelujah. That is our portion in Jesus Christ. और यह हमारा आशीष है यीशु मसीह में. Because we have the promised hope with us. क्योंकि हमारे पास वादा किया हुआ आशा है. And this month is a month where we extensively speak about Jesus और Christ. ये ऐसा महीना है जहां पर हम यीशु के बारे में और भी जो है पढ़न को करते हैं. And I don't want to leave that opportunity to talk about Jesus. और मैं नहीं चाहता कि पर यीशु मसीह के ऊपर जो है पढ़ने का मौका मैं गवा दूं. And who is the promised hope? और कौन है ये वादा किया हुआ And आशा? to keep a hope on someone is not easy. और देखिए किसी पर आशा लगाना ये आसान बात नहीं You know, है. you meet hundred millions of people in your life. और आप जो है आपके जीवन काल में लाखों लोगों को मिलते हैं. Do you keep hope on everyone? क्या आप हर किसी पे आशा लगाए रहते No, हैं? you do not keep hope on everyone. नहीं, आप हर किसी पर आशा नहीं लगाते. You know, it's not easy. और ये आसान नहीं That है. person on whom you keep your hope must carry some kind of attitude, some kind of character in him. और देखिए जिस व्यक्ति पर आप आशा लगाते हैं होना चाहिए कि वो व्यक्ति के अंदर कोई चरित्र हो, कोई जो है कोई चीजें विशेष बातें हो. You know, soldiers keep hope on the commander that the commander will lead them to victory. और जो सैनिक होता है वो अपने अधिकारी पर विश्वास रखता है कि इस आशा के साथ कि ये जो है हमें विजय की
ओर And the लेके people जाएगा। of a kingdom keep hope on the king. और देखिए जो राज्य के लोग होते हैं वो राजा पर आशा लगाते And that the हैं। king will give justice and will provide various provisions. और ये राजा जो है ये न्याय को करेगा और सही मायने से सारी बातों का पुरौठा करेगा। Parents keep hope on their children. और जो माता पिता है अपने बच्चों पर आशा लगाते Children हैं keep hope on the और parents. बच्चे जो है माता पिता पर आशा लगाते हैं। Everybody, somewhere, people have hope on someone. और देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कि विभिन्न लोगों आसपास में अपने आप में जो है आशा को लगाते हैं। But there are many who fail. लेकिन बहुत बार जो है बहुत सारे अधिकतर लोग जो है हार A जाते हैं commander can fail. और वो जो अधिकारी है वो असफल हो Many a सकता है times kings fail. और राजा जो है वो असफल हो सकता है। Many keep hope on governments. और देखिए काफी सारे लोग शासन पर आशा And लगाते government हैं will provide this thing, government will provide that thing. और शासन जो है ये चीजों को देगा वो चीजों को देगा But government fails. लेकिन शासन जो है असफल हो जाते हैं। Parents fail sometime, children fail sometime. माता पिता जो है वो जो है हार जाते हैं। कभी कभी जो है बच्चे जो है वो जो है असफल हो जाते But there हैं। is only one who never fails. लेकिन एक ही है जो कभी भी असफल नहीं होता Hallelujah. He has never failed. और वो कभी भी उन्होंने जो है हार He is अनुभव the नहीं only किया। begotten Son of God. और वो एक लौते यीशु मसीह है Jesus never fails. और यीशु जो है वो कभी भी जो है असफल He नहीं is हुए he was the same yesterday, today, and forever. और कल आज और निरंतर एक समान रहने वाले हमारे प्रभु है। Hallelujah. This morning, turn to your neighbor and tell your neighbor, Jesus never fails. आप आपके पड़ोसी की ओर देखते हुए कहे कि यीशु कभी हारता नहीं। If you keep your hope in Jesus Christ, अगर आप यीशु पर भरोसा रखते हैं आशा रखते हैं He will never fail you. और वो कभी आपको जो है आशा ही नहीं Hallelujah. करेगा। He will never say that, that this cannot happen. और देखिए यीशु आपसे कभी ऐसे नहीं कह सकता नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा Because you have hope in the Almighty God. क्योंकि आपकी आशा जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है। There is one phrase, और देखिए ऐसी कहावत है which is generally spoken in the world. और दुनिया भर में मशहूर है Keep your hope alive. और तुम्हारी आशा को जिंदा रखो। Hallelujah. How many of you heard this? Keep your hope alive. और कितने लोगों ने इस जो है वाक्यों को सुना Many है of us would have heard it. और बहुत सारे लोगों ने हमने सुना होगा। This morning, understand. और इस सवेरे के वक्त आप इस बात को समझ लीजिए Our hope is alive. और हमारी आशा जिंदा है। Hallelujah. He is not only alive, but he is active as well. और देखिए हमारे प्रभु जो है सिर्फ जिंदा नहीं लेकिन सक्रिय है। Turn to your neighbor and tell your neighbor, our hope, Jesus, is alive and active. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे कि हमारे यीशु जिंदा है वो सक्रिय है। Hallelujah. As I said before, और जैसे मैंने पहले कहा that there is some character which is required for a person that people should hope on him. और देखिए जैसे मैंने कहा कि किस व्यक्ति पर हम आशा लगाते हैं उसमें कोई चरित्र या कोई खासियत होनी So चाहिए। this morning I want to talk about 3 characters. और इस सवेरे के वक्त में 3 जो है चरित्र विशेषण के बारे में कहना 3 चाहता हूँ characters of Jesus और यीशु के 3 चरित्र विशेषण के which बारे में allows him to be a true hope. और जिसके वजह से वो हमारी सच्ची आशा बन सकते हैं या है। Hallelujah. The first thing this morning, और पहली बात first thing I want to tell you is Jesus is always reachable. और ये बात को कहना चाहता हूँ कि यीशु के पास आप हमेशा जो है भेंट कर सकते That is हैं। one of the important character of a person. और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है एक चरित्र If you है want to व्यक्ति keep का। hope on somebody, अगर आपको किसी पर जो है आशा लगानी that है person needs to be a reachable one. और वो व्यक्ति जरूरी है कि आप उस तक पहुंच पाए। Imagine if you're keeping hope on someone and you cannot reach that person. और आप जो है कल्पना कीजिए कि आप किसी पर आशा लगाते हैं लेकिन वो आपके पहुंच के बाहर है। The other day we were hoping from someone that the person would talk about the curfew things and what all we can do in the Christmas and the New Year times. और हाल ही में जो है हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे इस आशा के साथ कि वो हमको जो है मालूमात दे कि कैसे ये क्रिसमस के समय में जो भी कर्फ्यू या जो भी बातें हैं उसमें कैसे हमें आगे बढ़ना है। From Monday we were trying to call him. लेकिन सोमवार से हम जो है लगातार उसको फोन कर रहे संपर्क कर रहे But till now he did not pick up the phone. Till लेकिन- now he is not reachable. लेकिन अब तक
जो है वो हमारी पहुंच के बाहर है या हमारे संपर्क में नहीं I आए, don't know, maybe he would be busy, और हो सकता है वो would be व्यस्त है, occupied in some other works. हो सकता है किसी बातों में व्यस्त है, But for us to keep hope on someone, लेकिन हमें किसी पर आशा लगाने के लिए that person needs to be a reachable one. और वो व्यक्ति जो है हमारे पहुंच या संपर्क में होना जरूरी है। If you cannot reach that person, अगर आप उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते somewhere you become restless. और फिर आप जो है मानो रेस्टलेस हो जाते हैं, But Jesus does not like to see us restless. लेकिन यीशु हमें जो है अस्वस्थ देखने में रुचि नहीं He रखते, does not like us to see worried. और वो नहीं देखते हैं, उन्हें पसंद नहीं कि हम चिंतित हो जाए। He is someone who is always approachable. He is someone who is always attentive. He is someone who is always reachable. और देखिए वो ऐसे है जो हमेशा जो है हमारी वाणी को सुनते हैं, वो ऐसे है जो हमेशा हमारे संपर्क हमारे पहुंच में रहते When हैं। Jesus was on the earth, और जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, he never denied anyone who had a need. और देखिए उन्होंने किसी को भी नकारा नहीं जो उनको भेंट करना He चाहते never थे, said that I am busy today. और उन्होंने ऐसे नहीं कहा आज तो मैं व्यस्त हूँ, He did not say that today I cannot heal you. और उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आज मैं तुम्हें चंगा Today नहीं I कर cannot सकता, solve your worries. और तुम्हारी आज चिंता से He तुम्हें did मुक्त not नहीं say कर come सकता। tomorrow. उन्होंने ये नहीं कहा कि कल आ जाओ, But he was reachable, he was attentive, he was approachable. He was ready to take care of the things. और देखिए वो हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, हमेशा जो है हमारी और कान को लगाते हैं, हमेशा हमारे संपर्क में बने रहते The हैं। blind beggar who was sitting there on the roadside. और वो जो अंधा व्यक्ति जो है जो वहां पर बैठा था And रास्ते the पे, instance is written in Luke chapter 18. और उसके बारे में लूका के 18 अध्याय में उल्लेख है। This man, he was sitting on the roadside. और देखिए ये व्यक्ति जो है रास्ते पर बैठा And when he था, heard that Jesus is passing by, और जब उसने सुना कि यीशु वहां से हो गुजर he रहे started हैं, shouting, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, Son of David, have mercy on me. और उसने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। And when he was shouting, और जब वो चिल्ला रहा था, people were rebuking him और लोग जो है उसको चिल्ला रहे and थे were asking him to be silent. और उसको कह रहे थे तो चुप बैठ, But what did Jesus did? लेकिन यीशु ने क्या कहा? If you read Luke chapter 18 verse 40, अगर आप लूका का किताब 18वां अध्याय 40वां वाक्य देखते the हैं, verse says, and Jesus stopped and commanded him to be brought to him. और देखिए 18वां अध्याय का 40वां वाक्य वचन कहता है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। Hallelujah. The word of God says that Jesus stopped. और देखिए वचन कहता है कि यीशु खड़े हुए। Why did he stop there? क्यों यीशु वहां पर रुक गए? Because he heard someone crying for him. क्योंकि उन्होंने वहां पर सुना कि कोई उनको पुकार रहा Because है। he had a character of being approachable. He had a character of being reachable. और उनके पास ये विशेषता थी कि वो जो है लोगों तक पहुंच पाए, उनकी संपर्क में आ जाए। He did not say that I am in a journey. और उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं मैं अभी कोई यात्रा में हूँ। He did not say I am going somewhere. When I will return, I will address you. और उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं जो है यात्रा पर हूँ, मैं वहां पर जा रहा हूँ, उधर से He आने did के not बाद overheard आऊंगा। and he did not went away like that. और उन्होंने ऐसे ही सुनकर अनसुना नहीं किया, But he approached that blind man. लेकिन वो वहां पर उस अंधे व्यक्ति के पास And when he आते हैं। approached that blind और man, जब वो उस अंधे व्यक्ति के पास आते हैं, that blind man was healed. और वहां पर वो अंधा व्यक्ति The जो है blind चंगाई man को पाता received his है, eyesight. और उस अंधे व्यक्ति को जो है दृष्टि मिलती And है। there are many such instances about Jesus और बहुत सारे ऐसे उल्लेख है यीशु के बारे where में, people who were in need came to him और जहाँ पर लोग जरूरतमंद लोग जो है यीशु के पास आए, and he never denied them. और उन्होंने कभी किसी को नकारा You know, नहीं। may it be Jairus, the ruler of the synagogue, और हो सकता है वो जायरस क्यों ना हो जो आराधनालय का जो है or a वरिष्ठ व्यक्ति था, centurion whose servant was sick. या फिर वो अधिकारी जिसका नौकर जो है वो बीमार था, But Jesus was there always. लेकिन यीशु वहां पर सदैव थे। You know, this morning, if you are looking for somebody अगर आप जो है किसी की और आशा लगाए who हैं, will help you with your problems, with your issues, with your concerns, जो आपकी मदद करेगा आपकी समस्याओं से, आपकी चिंताओं से, you are looking for someone who will listen to your cry. अगर आप ऐसे व्यक्ति की राह में है कि कोई मेरे पुकार को सुनेगा, I'm telling you that someone is Jesus मैं Christ. आपसे कह दूं वो कोई जो है वो यीशु मसीह है। He is always attentive to you.
you and me. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारी और हमारी सुनते हैं. And also this morning, the first character which you and me need to know about Jesus is always reachable. और पहली बात हमें आज समझना होगा कि यीशु जो है हमेशा हमारे पहुंच में है या हमारे संपर्क में है. Hallelujah. When he is reachable, और जब हम उन तक पहुंच सकते हैं, oh, you have every opportunity to go to him. You have every opportunity to cry to him. You have every opportunity to plead to him. और देखिए जब यीशु हमारे पहुंच में है तो हमारे पास हर एक जो है आशा लगाने की बात है कि हमारे हर एक कराने को, हमारे हर एक बातों को उन तक ला Hallelujah. पाए. He has solutions for every problem. हर एक समस्या का हल उनके पास है. And turn to somebody and say, Jesus is reachable. और देखिए कि आप आपके पड़ोसी से कहे कि यीशु आपके पहुंच में है. Hallelujah. The first thing is Jesus is reachable. और पहली बात है कि यीशु आप जो है उन तक पहुंच सकते And हैं. another character a person should have, और दूसरा जो चरित्र एक और व्यक्ति में होना चाहिए, for people to keep hope in him, और उनके ऊपर अगर हम जो है निर्भर हो जाए, that the person must be reliable. और देखिए वो व्यक्ति जो है रिलायबल होना चाहिए. This morning I want to tell you there is no one as reliable as Jesus और Christ. देखिए इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कह दूं कि यीशु के समान कोई भी He is विश्वसनीय the नहीं most है. reliable and trustworthy person. और सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसामंद अगर है तो वो यीशु है. For a person to be reliable, और एक व्यक्ति अगर विश्वसनीय हो, the most important attitude which that person needs to carry is selflessness. और देखिए उस व्यक्ति के अंदर ये चरित्र होना जरूरी है कि वो निस्वार्थ है. And we all know how Jesus was selfless. और हम सभी लोग जानते हैं कैसे हमारे यीशु निस्वार्थ He है. went through the cross for your and my sins. और यीशु जो है आपके मेरे लिए जो है क्रूसित हुए. He did not thought about his own life, और उन्होंने अपने खुद की जान but के he बारे में went नहीं through that सोची. suffering for you and me. लेकिन आपके लिए मेरे लिए जो है उस संघर्ष को उन्होंने लिया. The entire plan of redemption was in Jesus' hand. और देखिए सारा जो है छुटकारा की योजना यीशु के हाथ में God थी. had sent him, और परमेश्वर ने यीशु को भेजा to be sacrificed so that you and me, can be redeemed, so that our relationship can be reconciled once again with God. और देखिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो उनका बलिदान के वजह से हम जो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हमारा होने पाए. Imagine if Jesus would have said no on the cross. और देखिए ये कल्पना कीजिए कि क्रूस पर जाने तक यीशु अगर नकारते उस बात के लिए, Or would have denied that he is Jesus when the soldiers came to arrest him. और देखिए या फिर वो नकारते कि मैं यीशु नहीं हूँ. The plan of mankind would be in danger. और देखिए ये जो मानव जाति है, हम जो मानव जाति है, हमारी जान जो है खतरे में होती. But Jesus did not do it. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया. He said, I am Jesus for whom you are looking for. और देखिए जो उनको पकड़ने आए थे उनको यीशु ने कहा कि मैं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं. Why? Because Jesus was trustworthy. Jesus was reliable. और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि यीशु जो है वो विश्वसनीय है, वो भरोसेमंद है. He says, come to me, I will give you rest. और देखिए वो कहते हैं मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्रांति Peter दूंगा. writes, और पतरस इस प्रकार लिखता cast है, all your anxiety on Jesus. He will take care of it. तुम्हारी सारी चिंता जो है यीशु पर डालो क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता And है. this morning, if you are sitting here, और अगर आप इस सवेरे के वक्त बैठे हैं with a heavy burden in your life, और आपकी जिंदगी में आप जो है उस बोझ को लेके cast बैठे it हैं all to Jesus और Christ आपके बोझ को पूरी रीति से आप यीशु पर and rely डालिए on Him. और यीशु पर आप जो है For He will विश्वास take care of डालिए it. क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा. When Jesus was going to Jairus' house to heal his sick daughter, और देखिए जब यीशु जो है जायरस के घर पे जा रहा था कि उसकी बीमार बेटी को वो बचा सके या people चंगा कर came and सके. spoke to Jairus. और देखिए लोग आए और जायरस से उन्होंने कहा Don't bother the teacher, your daughter is dead. और उन्होंने
उन्होंने कहा कि तुम जो है वो शिक्षक को जो है और तकलीफ में मत डालो, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है वो मर गई है। Hallelujah. If there was somebody else over there with Jairus, और देखिए अगर कोई और होता जायरस के साथ, he would have left somewhere else. और हो सकता है वो फिर निकल जाता। But Jesus did not did that. माफ कीजिएगा, अगर यीशु के जगह पे और कोई होता तो जो है वो निकल जाता था, लेकिन Jesus यीशु was ने ऐसा trustworthy. नहीं किया। Jesus was reliable. लेकिन यीशु जो है भरोसेमंद है, वो जो है विश्वसनीय है। He says in Mark 5:36, और देखिए मरकुस का किताब 5वां अध्याय 36 कहता है, don't be afraid, just believe. और वचन कहता है कि तुम जो है भयभीत न हो, तुम केवल विश्वास रखो। Hallelujah. That words can come only from one person. और देखिए ये बातें जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति कह सकता है। A person who has the power to raise someone back to life. और देखिए ये ऐसा ही कोई कह सकता है जो मृत्यु से जीवन का वरदान दे दे। Jesus has that power. और यीशु के पास वो अधिकार है। Hallelujah. Because Jesus had that power, he said these words and he went and he healed his daughter. और देखिए क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार था, यीशु ने इन बातों को कहा और जाकर उस बेटी को उन्होंने जो है ठीक किया। This morning I want to encourage you all और इस सवेरे के वक्त में आप सभी को प्रोत्साहित करना that चाहता हूँ rely on Jesus कि Christ. आप यीशु पर जो है निर्भर हो जाए। He holds all the power, he holds all the authority in his hand. और यीशु के पास सारा अधिकार है, यीशु के पास सारा सामर्थ्य है। And he is reliable and trustworthy. और यीशु ही जो है भरोसामंद है और वो ही विश्वसनीय है। Mark my words this morning. और इस सवेरे के वक्त जो है मेरी बातों को आप नोट लीजिए। What he says, he does it. और जो वो कहते हैं वो करते हैं। Hallelujah. If he said that he will heal you, he will definitely heal you. अगर उन्होंने कहा है कि वो आपको चंगा करेंगे तो निश्चय ही If वो he आपको said that चंगा he will give करेंगे। you the liberty, you will definitely experience liberty in him and through him. और अगर उन्होंने कहा है कि आपको स्वतंत्रता आपका भाग है तो निश्चय ही यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे। And turn to someone and say that Jesus is reliable. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे कि यीशु भरोसेमंद है। Hallelujah. So the first thing this morning you and me need to know about Jesus और इस सवेरे के वक्त पहली बात आपको समझना जरूरी is है that Jesus is reachable. कि यीशु आपके पहुंच में The है। second thing is Jesus is reliable. और दूसरी बात है कि यीशु भरोसेमंद है। Finally, the third important character of a person, और देखिए तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात, for a person to have in him so that people can hope in him, और तीसरी बात जो आप अगर किसी पर आशा लगाए या पर उस पर भरोसा that a रखें, person must be relatable. और वो व्यक्ति जिसके साथ आप जो है जुड़ सकते हैं। It is very easy for you to hope on someone who can understand you, Or- someone who can understand the concern, someone who can understand the issues which you are going through. और देखिए ऐसा व्यक्ति जो आपकी समस्या को समझ पाए, जो आपको महसूस करने पाए, Someone who can understand your problem and can provide a solution to you. और ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी समस्या को अच्छे से जानकर उसका जो है सुझाव दे। That person must be relatable to what you are going through. और देखिए ऐसा व्यक्ति जो आपकी समस्या को समझते हुए उसको रिलेट कर पाए। Jesus came on this earth as a human being. और देखिए यीशु इस पृथ्वी पर आए एक मनुष्य के तौर He पर। lived and walked as a normal person. और देखिए यीशु जो है एक साधारण मनुष्य के समान He यहाँ पर ate, he थे। slept. और वो खाए, उन्होंने सोया। He went through all those things which a man goes through. और देखिए हर एक जो मनुष्य जाति जाती है उन सारी भावनाओं के दौर पर वो गुजरे। He was 100% human and he's 100% God. और देखिए वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर है। So this morning I want to encourage you और इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित to करना keep चाहता your हूँ hope in Jesus Christ और आप जो है परमेश्वर यीशु पर आशा को as he लगाएं। understands and relates to every issues and every problems you go through. और देखिए क्योंकि वो जो है महसूस कर सकते हैं सारी समस्या जो जिस दौर पर आप जाते हैं। Jesus went through temptations और देखिए यीशु जो है प्रलोभन से होकर and गुजरे he overcome every temptation in his life. और उनकी जिंदगी में सारे जो प्रलोभन थे उससे हो If you're गुजरे। somebody who's going through any kind of temptation अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, कोई प्रलोभन आपके and जीवन में finding है it difficult to come out of that temptation, और आपको जो है आप जो है कठिनाई महसूस कर रहे हैं उस प्रलोभन से बाहर आने के लिए, Jesus is the hope for you. और आप
आपसे कहो कि यीशु आपके लिए आशा है Approach him और आप उसके पास जाए, as he will relate to the temptation क्योंकि वो जो है उस प्रलोभन को समझ सकते and हैं will give you a solution to how to come out of it. और देखिए वो आपको सुझाव देंगे कैसे उस प्रलोभन He से will आप बाहर guide आ you this जाए। morning और वो आपको जो है इस सवेरे के वक्त जो है आपको नेतृत्व because he करेंगे, relates to your problems. क्योंकि वो महसूस करते हैं आपके समस्या को। You know, every Christian is now going through persecutions. और देखिए हर एक क्रिस्ती जो है वो सताव की ओर से And we all know गुजरता that है। Jesus was persecuted. और देखिए हम सभी लोग जानते हैं यीशु को भी सता हुआ। So do not lose hope this morning. और इस सवेरे के वक्त आप जो है आपके दिल को छोटा न Jesus करें। went through that persecution and he came out victorious. और देखिए यीशु सताव से होकर गुजरे और वहां पर उन्होंने विजय को पाया। In him we will also come victorious in the name of Amen. Jesus. और उनमें ही हम भी जो है विजय को फतेह को पाएंगे। But we need to approach him. लेकिन जरूरी है कि हम उन तक He knows पहुंचे। how to face persecutions. और देखिए वे जानते हैं सताव जब होता है तो उसको कैसे उसका सामना करना है। And when we learn from him, और जब हम उनसे सीखते हैं when we walk according to his guidance, और जब हम जो है उनकी ओर जो है नेतृत्व में चलते हैं, you know, we will come out victorious in the name of Amen. Jesus. हम जो है यीशु के द्वारा विजय होकर आएंगे। You know, there is no problem in this world where Jesus does not have a solution. और देखिए इस दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका उपाय यीशु के पास नहीं है। You know, go read the word of God. और आप जो है वचन को पढ़िए You will find solution in that. और आप जो है वचन में वहां पर उपाय को पाएंगे। You know, you look in the world today, all the management books. और आप जो है दुनिया में काफी सारे मैनेजमेंट बुक्स को देखते You know, हैं these management principles which is there, और जो भी जो है मैनेजमेंट बुक्स आप all are देखते हैं based on the life of Jesus or the ministry of Jesus. और ये सारे पुस्तकें जो है वो यीशु के बोलने पर या शब्दों पर या उनके You know, you जीवन talk पर about सिद्धांत पर delegation. पढ़ते हैं। अगर आप जो है डेलीगेशन किसी You को talk about succession planning. अगर आप जो है जो सक्सेशन का You प्लानिंग talk करते about हो stewardship. और अगर आप जो है एक अच्छे भंडारी की You know, बात these are the करें words which is used in the managements, in the business worlds. और आप जो है इन सभी बातों को जो है व्यवसाय की दुनिया में पाते हैं। You know, all these can be found in the ministry of Jesus और Christ. देखिए ये सारे जो प्रबंधक बातें हैं ये यीशु की सेवकाई में आप पाएंगे। Hallelujah. This morning I'm telling you, Jesus can relate to everything what you are going through. और देखिए इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कह दूं जिस समस्या से आप जाते हैं उन्हें वो महसूस करते You know, हैं। there was somebody who approached me और कोई मुझसे आकर भेंट and told किया me that, you know, in my workplace I'm finding it very difficult. People are accusing me. People are raising false complaints against me. और देखिए किसी ने मुझसे कहा कि मेरे काम के क्षेत्र में कोई मुझ पर जो है दोष को लगा रहा है और मुझ पर जो है उंगलियां उठा रहा है। And I'm telling you, Jesus also went through it. और आपसे मैं कह दूं कि यीशु जो है इस बातों से इस समस्या से हो गुजरे Just approach Jesus Christ, और आप जो है यीशु से भेंट कीजिए because your issues relate to what Jesus went through. और देखिए क्योंकि आपकी जो समस्या है वो यीशु उससे हो गुजरे हैं And he will give you a solution. और इसलिए जो है वो आपको उसका उपाय देंगे। Hallelujah. This morning, once again, I want to tell you that Jesus is relatable. और इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कह दूं कि यीशु जो है वो आपको महसूस करते हैं आपकी You समस्या know, को। turn to somebody and say, Jesus is relatable. He knows all issues, all concerns which you're going through. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे कि यीशु आपको महसूस करते हैं जो भी समस्या से आप जाते हैं यीशु उन बातों को जानते हैं। Hallelujah. The word of God says in Hebrews chapter 4 verse 16, और वचन कहता है इब्रानी का किताब 4:16 let us then approach God's throne of grace with confidence. और देखिए वचन कहता है कि इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर आए So that we may receive mercy and find grace to help us in a time of need. कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Hallelujah. This morning, let's approach God's throne with confidence in Jesus Christ. और इस सवेरे के वक्त जो है हम यीशु के सिंहासन के पास साहस बांध You know, कर with आए confidence on a promised hope, और हमारा जो है आशा उस आशा who is वादा की always आशा पर reachable, who is always
always reliable, who is always relatable. और जिसके पास हम हमेशा जो है संपर्क में आ सकते हैं, जो हमेशा जो है हमारी जो है सुनता है, महसूस करता This है। morning, if you are ready to approach Him, can we all rise on our feet? और इस सवेरे के वक्त अगर आप तैयार हैं प्रभु के साथ भेंट करने के लिए, क्या आप खड़े हो सकते Can we हैं? talk to the Lord this morning? क्या आप जो है प्रभु से बात कर सकते Can we हैं? pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? You know, Jesus is somebody who is approachable. Jesus is somebody who is reachable. और देखिए यीशु जो है ऐसे है जिसके पास आप हमेशा पहुंच सकते हैं। Jesus is someone who is attentive to your cry. और देखिए यीशु निरंतर जो है आपके दर्द के आपकी वाणी की ओर होते हैं।